پاکستان کی دیکھ رہے ہیں اور یہاں ہماری آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ یہ ایک فیملی ہے پی ٹی وی کی اور ہم لوگ بہت سے دن بہت سے سال بہت مہینے ایک ساتھ گزارتے ہیں تو آپس میں بڑا ایک پیار محبت کا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو آڈینس سامنے آتی ہے ان سے تو ایک اور خاص رشتہ ہے. جناب آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ٹاپک ہے کہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات کتنے ضروری ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک محبت پیار کتنا ضروری ہے. جس طرح یہاں پہ جگن نے اپنے گھر کی بات بتائی, کچھ میں نے اپنے گھر کی بات بتائی, ہماری آڈینس بھی ایسے یہاں پہ اپنے اپنے گھروں کی بات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو وہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لرننگ کرتے ہیں, ہماری نئی سے نئی چیز ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے ایک اچھے انداز میں. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ جو اللہ ہمارے رشتے جوڑتا ہے, جو اللہ تعالیٰ رشتے بناتا ہے, وہ کسی مقصد کے تحت وہ رشتے بنتے ہیں. ان رشتوں کو نبھانا, ان رشتوں سے محبت کرنا اور ان رشتوں کو لے کر کے چلنا یہ ہم پہ لازم ہے, دنیاوی طور پہ بھی لیکن آخرت میں بھی اس کا سوال ہوگا. تو آپ کی ذات سے, آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی خاتون, جب کوئی مرد, کوئی عورت زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ایموشنل ہوتی ہیں, روتی ہیں, ان کے آنسو نکلتے ہیں, یعنی کہ آپ نے کسی کی وجہ سے ان کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ سوچیے کہ دل جو ہے وہ دکھا ہوا نہ ہو آپ کی وجہ سے, دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے. تو جناب اس گناہ سے پرہیز کیجیے گا. ہمارا یہ سیگمنٹ چھوٹی سی نیکی کا سیگمنٹ ہے اور ایک جگن بات جی اس کی طرف بڑھنے بالکل سے میں پہلے چاہوں گا کہ احسن ایک آپ کی ویڈیو بات میں جی ایک اگریمنٹ جی جی کرنا جی چاہوں گی ضرور ضرور اور ایک بات آپ کو یاد کرانا چاہوں گی. احسن دیکھیں یہ ہمارے ڈرامے ہی ہوتے تھے, یہ ہمارا میڈیا ہی ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ ہائے اگر کوئی لڑکی ڈیورسڈ ہے یا بیوہ ہے تو اس کی زندگی برباد ہو گئی. ساسوں کی بری امپریشن پوری دنیا میں کس نے دی؟ میڈیا نے ہی دی. تو اب ہمارا فرض بنتا ہے ایز پیپل ان دا میڈیا کہ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں. اور اس لیے نہیں ویورز کے ہمیں ریٹنگ چاہیے. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پی ٹی وی کو یہ ایشوز نہیں ہیں, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریٹنگ. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو اور اچھا کانٹینٹ آپ تک پہنچائیں. اور آج یہ جو پوری پروسیس ہوئی, بریک میں نے ایسے سے لڑائی بھی کی کہ یہ کیا مطلب بلا وجہ مجھے رلوا دیا, لیکن یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں. ہم سب کی زندگیوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور اگر آپ زندگی کے کسی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں تو یہ ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں. اگلے کو عجیب و غریب مخلوق کی طرح نہ ٹریٹ کریں, ٹریٹ دم لائک ہیومن بینگز. ہم سب ٹائم سے ہی گزرتے ہیں. تو میں آپ کو آنیسٹلی ایسا, مردوں کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا. یوزلی خواتین ہی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کا درد کر رہی ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کا مزید مسئلہ خراب کر رہی ہوتی ہیں. مرد یوزلی ان چیزوں سے باہر رہتے ہیں. لیکن جب تک یہ بات عام نہیں ہوگی کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے, رشتہ نہیں چلتا, کسی عورت کا شوہر حیات نہیں رہتا یا وائس ورسا میل کے کیس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, تو بڑی بات ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ اگلے کو زندگی جینے سے ہی روک دیں. بالکل بالکل صحیح کہا. کیونکہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور ہم نے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے, ایک دوسرے کو بلڈ اپ کرنا ہے, پل ڈاؤن نہیں اور کرنا. رب کی ذات پہ توکل کریں. اگر کوئی آپ سے چھن جائے, کوئی چلا جائے, کوئی دور ہو جائے, کچھ بھی ایسا ہو جائے تو رب کی ذات پہ توکل ہے. اور بہرحال آج ہمارا ہمارے یہ ایک ساتھ ایک ایسا سیگمنٹ جی کیس بھی ہے. ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس جو سیگمنٹ میں آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان سے ہمیں صبر سیکھنا چاہیے, ایک توکل کی جو ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ آپ تکلیف میں جب کسی کو دیکھتے ہیں, پریشانی میں, اور کس طرح وہ پھر بھی زندگی چلا رہا ہوتا ہے, تو یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے سیکھنے کا ایک موقع ہوتا ہے. جناب ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں گے, ویڈیو دیکھ کے واپس آئیں گے تو ہمارے بھائی سے بات بھی کریں گے. جی دکھائیے. السلام علیکم, میرا نام اخلاق ہے. میں سرجانی ٹاؤن سیف المری گوٹ کا رہائشی ہوں. رکشہ چلاتا ہوں. رکشہ میرے پاس بھاڑے کا ہے. 300 روپے مجھے بھاڑا دینا پڑتا ہے. رکشے کی کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر سواری بیٹھے, بہت مشکل سے سواری بیٹھتی ہے اس میں. بعض سواریاں تو میری گاڑی کو دیکھ کے چلی جاتی ہیں. روزگار جو ہے نا میرا نہیں ہے, 600-700-800 روپے کماتا ہوں. اس میں فیول بھی ہے, گاڑی کا بھاڑا بھی ہے, بہت پریشانی ہے. اور وائف میری جو ہے نا مدرسہ پڑھاتی ہیں. مدرسے میں بچے ہیں, تقریباً 1000-1500 روپے ان کے بن جاتے ہیں اس سے. بس یہ روزگار میرا اچھا ہو جائے تاکہ بچے چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتے ہیں, میں نہیں کر پاتا پوری, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے. اگر گاڑی کوئی صحیح ہو میرے پاس تو پھر میں صحیح طریقے سے کام کر کے اپنے بچوں کی کفالت اچھی کر سکتا ہوں. بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے, پانی بھی ڈلواتا ہوں, گیس بھی ڈلواتا ہوں. تو یہ سمجھ لے کہ کھانے پینے کے لیے نہیں بچتا کچھ. وہ اللہ چلا رہا ہے, کس طریقے سے چل رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتہ. بہرحال یہ چاہتا ہوں میں روزگار اچھا ہو جائے میرا
मुझे कोई रिक्शा बेहतर कंडीशन का कोई मिल जाए तो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा काम कर सकूं। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारे साथ इखलाक भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई। इखलाक माइक भाई, इखलाक भाई का नहीं चल रहा, काइंडली आप बोलिएगा इखलाक साहब, माइक में बोलिएगा। जी वालेकुम जी जी अस्सलाम। जी जी अच्छा अब चल रहा है, इखलाक ठीक। भाई एक बात बताइए कि आपके बेसिकली 4 बेटे हैं माशाल्लाह, जी और बेटियां? बेटी नहीं है। तो 4 बेटे हैं आपके। रिक्शा आपने जो बात की मैं समझ सकती हूँ। देखिए जब भी कोई इंसान किसी भी किराए की सवारी में बैठता है तो इंसान को ये होता है कि कोई अच्छी हो हालत में गाड़ी हो, ये ना हो कि रास्ते में रुक जाए, ख़राब हो जी जाए। हाँ। उसका भाड़ा जो आप दे रहे हैं वो आप 300 रुपये दे रहे हैं, जी क्योंकि ऑब्वियसली हालत उसकी अच्छी नहीं है। और फिर अगर रोज़ आपकी 500 रुपये आमदनी है, आपने पेट्रोल भी डालना है, 300 वो है, तो लेने के उल्टे देने पड़ जाते जी होंगे। हाँ। और मेंटेन भी आपने उसे खुद ही करना है। जी हाँ। तो भाई आप बेसिकली तो ये चाह रहे हैं कि आपको एक साफ़ सुथरा नीट क्लीन रिक्शा मिल जाए। जी हाँ बिल्कुल। और भाभी काम करती हैं, जी हाँ, वो मदरसा पढ़ाती हैं बट कोई बच्चों आमदनी को। है उनकी कि नहीं? नहीं, उनकी कोई आमदनी है, बस मदरसा पढ़ाती हैं, जो अच्छा, फी उसमें हो सबीलिल्लाह। जाती है फी सबिलिल्लाह, जो दे दे वो दे दे। जो कोई जैसे अक्सर मदरसों में जुगन ये होता है कि अगर आप किसी को कुरान पढ़ाएं या कुछ करें तो माँ बाप अपनी खुशी से कुछ पैसे या कोई कपड़े या कोई खाना भिजवा दें, तो मगर कोई वही फीस वो नहीं कोई एक होती, इनकम हाँ। नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है। और आपकी हमने पूरी आपकी जो आपने बताया हमें जो हालात थे वो हमारे सामने हैं। मैं क्योंकि ऑडियंस आपको देख रही है मेरे भाई, और मैं चाहूँगा कि ऑडियंस अगर आप खुद भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि कोई आपका अपील नंबर हम करना चाहते हैं। आपका नंबर हम स्क्रीन पे चला देते हैं। ये नंबर चल गया इस तो नंबर में ये इजी पैसा देखिए। या जैज़ कैश हाँ, है भाई? भाजी जो आप इजी इजी मोबाइल पैसा जैस कैश तो घर के नंबर पे है मेरे। अच्छा वो चलें, इस नंबर पे जो भी नहीं है? आपसे राब्ता जी। करेगा, जुगन इनसे जो भी राब्ता करेगा ये उसको बता देंगे। लेकिन ऑडियंस से गुजारिश है, जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, कि हमारे भाई की मदद कीजिए। आगे ईद के दिन आ रहे हैं जनाब, इनके घर में थोड़ा राशन, कोई आसानी, कोई कपड़े अपने बच्चों के ले सके, मुश्किल में है, परेशान है, मुसीबत में है, और चाहते हैं कि मैं आप हम सब मिलके इनकी कुछ यहाँ पे मदद करें। हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा भाई आप आप कोई- कैमरे में देखिए और थोड़ी अपील कर दीजिए प्लीज़। जी सिर्फ मेरी अपील ये है, मेरा रोज़गार अच्छा हो जाए, मैं किसी से और कुछ नहीं चाहता। मैं खुद करूँ जो भी अपना ठीक है, अपना ठीक है, रोजगार आपको बनाना है और इसका मकसद ये कि इनको रिक्शा चाहिए। जी बेसिकली हाँ। ऐसे अगर ये एक तो रिक्शे के खुददार भाड़े आदमी से है। बच जाएंगे, उसके अलावा अगर इनका ये मामला हो जाएगा कि एक नीट एंड क्लीन नया जी रिक्शा हाँ। होगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा अखराजात बहुत कम हो जाएंगे उसको जी हाँ। मेंटेन करने के, और बेहतर शक्ल के रिक्शे में लोग भी आके बैठेंगे। जी हाँ। तो जो जहाँ 500 कमाते हैं शायद 1500 कमा लेंगे जी हाँ। अच्छा इंशाल्लाह। भाई एक चीज मैं और पूछ रहा था, रिक्शा में पैसे बनाने के लिए कुछ इलाकों का भी फर्क होता है, जाहिर है आपने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक और साहब है, उन्होंने कहा वो 2,500-3 हज़ार दिन का बनाते हैं, जी आपके थोड़े कम बन रहे हैं जाहिर है। जी हाँ। तो उसकी वजह, और आपने कहा कि लोग बैठते नहीं, रिक्शे की कंडीशन ऐसी है, वो वजह एक है मेन, या कोई और वजह भी है? वजह यही है कि रिक्शा इस कंडीशन में लोग देख के हट जाते हैं, बैठते नहीं हैं उसमें। ठीक है, उसमें बैठते नहीं हैं लोग। अच्छा जनाब, ये आजकल ज़िंदगी में कुछ बनाना, अपने बच्चों के लिए करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं सैलानी से, क्योंकि हम कनेक्शन में हैं, हम चाहते हैं कि सैलानी वाले यहाँ पे इनकी ज़िम्मेदारी ले। भाई मेरे, आपके लिए सैलानी की तरफ से राशन तो जाएगा इंशाल्लाह, और किटका का की जानिब से भी राशन आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएगा, जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस एसोसिएशन अच्छा, है। अब- लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, अगर सैलानी के हमारे साथ कोई रिप्रेजेंटेटिव कॉल पे हैं, अगर वो नहीं हैं तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं, ये एक भी चीज़ तो मैं हमें सैलानी बताइए ना। वालों से एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भाई की जो मिसेज हैं, अब वो मदरसे में पढ़ा रही हैं और फ़ी सबिलिल्लाह पढ़ा रही हैं, लेकिन आजकल बहुत से ऐसे इदारे हैं जो मदारिस में पढ़ाने के लिए बच्चों को सैलरी तालीम भी देने देते के लिए हैं। सैलरी भी देते हैं। तो हम एक तो तो क्या सैलानी भाभी ये वालों से चाहेंगी? वो ये चाहेंगे अगर ऐसा सैलरी कोई उनको मिले। सिलसिला बन जाए कि वो यही मैं- काम करें, लेकिन उसमें कुछ उनको इनकम भी आ जाए। असल में मैं ये चाहता हूँ, मैं जो कुछ करूँ खुद करें, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर वो अगर वो थोड़े माशाल्लाह एक्स्ट्रा कमा थोड़ा लेंगी तो एक्स्ट्रा कमा अपने लेंगी लिए तो इसमें कपड़े क्या भी कपड़े हर्ज ले है? लेंगी, अपने लिए कुछ कर लेंगी। औरत की कमाई तो वैसे जी ही हाँ। मजबी तौर पे भी जी उसकी हाँ, अपनी यही होती बात है। है। तो अगर उनका कुछ आमदनी का मामला बन जाए तो वो अपनी भी कुछ चीजें पूरी कर लिया करेंगी। हाँ, वो तो एक अलग बात है, अगर मगर ऐसा ये हो कि जाए तो। कोशिश ये है कि मैं खुद ही करूँ, ठीक है, जो आप भी करूँ। इंशाल्लाह I खुद ही करें। understand, अच्छा मुझे जुगन, समझ आ रही है आप एक क्या और चाह रहे काम हैं है कि जो जो करो कुरान खुद करो। पढ़ाना, वो तो एक बहुत नेक वैसे ही काम बहुत है कि बड़ा आप काम है। लोगों को तालीम दे रहे हैं, तो नेकी का काम है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन भी भी पढ़ा सिलसिला सकते होता है हैं, एक हाँ। पढ़ाने का, कि ऑनलाइन पढ़ा दिया, बच्चों ने फ़ी दे दी,
तो ये तो एक माइंड सेट है, हमारी बहन फ्री में पढ़ा रही हैं, ये उनका नेकी का एक अमल है कि बड़ापन फी है, आप सबीलिल्लाह दोनों का बड़ापन कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उसमें इनकम हो जाए, सैलानी वालों को इंक्लूड करेंगे जनाब हमारे साथ, क्योंकि सैलानी वाले इस वक्त फ़ोन पे नहीं आ सकते, लेकिन हमें ये अथॉरिटी ज़रूर दी गई है कि पीटीवी पे हमारे पास रिक्शे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा वो वीडियो हमें दिखाइए जी कि रिक्शे जो बाहर हैं हमारे पास मौजूद हैं। हम अपने भाई को पीटीवी की तरफ से और सैलानी की तरफ से एक रिक्शा ज़रूर देंगे। ये देखिए, लाइए जी रिक्शे की की लाइए, सैलानी वालों के रिक्शे यहाँ ब्रांड न्यू मौजूद है। हमारे भाई का चूँकि रिक्शा जो है वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं ये और चाहूँगा। बात ये कि एहसन अल्टीमेटली जो सबसे अच्छी और प्यारी बात अखलाक भाई की, वैसे तो व्यूअर्स उनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप अखलाक भाई से रब्ता करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। उनकी बेसिकली ख्वाहिश ये है कि उनका अपना रिक्शा हो। इधर आइए, इधर आइए। और बड़ी प्यारी बात है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई मैं खुद करना चाहता हूँ। आपने रिक्शे की कंडीशन देखी है अब? माइक में बोलिए। देखिए रिक्शे की जबरदस्त है। कंडीशन। जी हाँ, बेहतरीन। चलेगा ये? बहुत जबरदस्त आप बोले चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दौड़ेगा ये, क्योंकि देखिए ना, ये बिल्कुल अगर ये रिक्शा आपको 5 मिल से जाए, 6 लाख रुपए का हाँ, इसकी अगर ये कीमत है, मिल जाए तो और खुश होंगे आप। जी हाँ, बहुत ज्यादा खुश भाई होते इस पे बैठ के तो आप 500-700 नहीं कमाएंगे, कितना कमाएंगे? तकरीबन। एक अच्छा रिक्शे वाला, मैं वैसे जनरल बात है कि एक अच्छा, हमारे पास यहाँ बहुत आए हैं जो रिक्शा चाहते हैं, एक अच्छा जो चलाते हैं और जिनकी कमाई होती है, तो कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 2000 रुपए कमाते हैं। 2000 मिनिमम 2000 है जो कमा जी हाँ, लेते हैं। कम से कम 2000 और ये कमा किराए का भी नहीं होगा, आपको किराया भी नहीं देना जी हाँ। पड़ेगा, तो यानी कि महीने अगर का आप 60,000 हो नहीं, गया, आप यानी- जी हाँ। 60,000। यानी कि आप 500 भी अगर निकाल लें पेट्रोल वगैरह के, 1500 बच 500 भी गया। निकाल जी हाँ। लें तो 45,000 45,000 महीने का आराम बच से गया आपके पास। आपके जी हाँ। इंशाल्लाह बचेंगे। और आपको पता है ईद और ऐसे मौकों पे तो वैसे ही ज्यादा लोगों की जी हाँ। होती है। तो ठीक है, तो वैसे आपका जनाब ख्वाब क्या है भाई, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोचा है? होता है ना, हर माँ या बाप का एक ख्वाब होता है, अपने बेटों के लिए क्या ख्वाब है आपका भाई? भाई मैंने ये सोचा हुआ है मेरे बच्चे पढ़ें लिखें इंशाल्लाह। और माशाल्लाह फौज में जाए। फौज में। जाएं। भाई इससे बड़ी और क्या खुशकिस्मती होगी कि अगर आपकी औलाद फौज में जाए और अपने मुल्क की खिदमत करे और फौजी बने, तो माँ बाप का सर फख्र से बुलंद होता है। और हमारी फौज तो दुनिया की बेहतरीन फौज में आती है, और उसका अगर कोई हिस्सा बन जाए तो क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। लाइए जी की दीजिए मुझे, मेरे पास रिक्शे की जो हमारी सिंबॉलिक की है वो आ चुकी है, तो हमारे भाई के लिए बजाइए जोरदार तालियां। ये लीजिए जनाब, सैलानी वेलफेयर की जानिब से रिक्शा आपका हुआ, तालियां। क्या बात है। कोई तारिक अजीज साहब याद आ गए, अल्लाह उनको जन्नत बहुत में शुक्रिया दौलत में आला। भाई। मैं यहाँ बहुत पे शुक्रिया। हमारी जो मार्केटिंग टीम है, खुर्रम भाई और अमीन भाई का एक मरतबा फिर हाँ, आज मुझे शुक्रिया अदा दिखाई नहीं करना दिए, दिखाई नहीं, वो दिए। उधर सफेद छुप- बाल छुप नजर आ जाते रहे हैं मुझे, वो। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे तमाम जो गिफ्ट्स आपको जाते हैं, इतने ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, इतना प्यार बढ़ता है यहाँ पे। ये भी सारा मार्केटिंग का एक सिलसिला है जो हमें पूरा प्रोग्राम आगे बढ़ा पाते हैं। तो मार्केटिंग यानी अमीन भाई और खुर्रम भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए यहाँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे आपको तो हम मुबारक हो क्विज की भाई। जाने पड़ेंगे। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ